آج پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد اور پنجاب سیل حکومت نے کنٹینروں کی دیواریں کھڑی کر دی۔ راستوں کی بندش سے لوگ پریشان۔ اسلام آباد کے تمام داخلی اور خارجی راستوں پر کنٹینر لگا دیے گئے۔ اسلام آباد سے فیض آباد پنڈی آنے والا راستہ بھی بند۔ فیض آباد آئی جے پی روڈ، رواد، کیریج فیکٹری، مندرہ اور ٹیکسلا روڈ کو بھی بند کر دیا گیا۔ موٹر وے پر گاڑیوں کے لیے نو انٹری کے بورڈ لگا دیے گئے۔ جڑواں شہروں میں 33 مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کی گئی۔ میٹرو بس سروس بھی معطل ہے۔ قافلوں کی آمد روکنے کے لیے گلیات سے اسلام آباد جانے والی سڑک کھود دی گئی۔ مری روڈ باڑیاں کے مقام پر ہیوی مشینری سے گڑھا کھودا گیا۔ مری روڈ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ راستوں کی بندش کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لاہور کے داخلی اور خارجی راستے بھی سیل، جگہ جگہ کنٹینرز اور دوسری رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں۔ راوی پل سے شہر میں ٹریفک کا داخلہ بند۔ موٹر وے پر بھی مختلف مقامات پر کنٹینر کی دیواریں لگا دی گئیں۔ گجرانوالہ میں بھی راستے بند۔ جی ٹی روڈ پر چناب اور دریائے جہلم پر پل بند کر دیے گئے۔ جہلم پل کے قریب مریض ایمبولنس میں دم توڑ گیا۔ مبینہ طور پر ایمبولنس کو گزرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ لواحقین میت اٹھا کر پیدل ہی روانہ ہوئے۔ بس اڈوں کی بندش سے لوگ رل گئے۔ چیئرمین پاکستان بس اونرز ایسوسی ایشن نے کہا، ہزاروں ورکرز بے روزگار ہو گئے، حکومت اڈے بند نہ کرے۔ وعدہ ہے کوئی پبلک ٹرانسپورٹ دھرنے میں سہولت کاری نہیں کرے گی۔ انٹرنیٹ سروس بندش کا فیصلہ حالات دیکھ کر کیا جائے گا۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے، جہاں سیکیورٹی خدشات ہے وہاں صورتحال کے مطابق انٹرنیٹ سروس بند ہوگی۔ مختلف شہروں میں انٹرنیٹ میں خلل سے صارفین کو مشکلات کا سامنا۔ کراچی، راولپنڈی، ڈی آئی خان اور دیگر کئی شہروں میں انٹرنیٹ سروسز شدید متاثر، رفتار بھی سست ہو گئی۔ اسلام آباد پولیس کا مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن، 200 سے زائد پی ٹی آئی کارکن گرفتار۔ پولیس نے خواتین کارکنان کو بھی دھر لیا۔ دیگر شہروں میں بھی پکڑ دھکڑ جاری۔ اس بار جو اسلام آباد آئے گا اس کو واپس جانے نہیں دینا، وزیر داخلہ کی پولیس کو واضح ہدایت۔ پولیس لائنز اسلام آباد میں خطاب کے دوران محسن نقوی نے کہا، اسلام آباد شہر کو ہر صورت محفوظ رکھنا ہے، قانون ہاتھ میں لینے والا ہر شخص گرفتار ہوگا۔ وزیر داخلہ کا چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کو ٹیلی فون، احتجاج نہ کرنے کا مشورہ دیا۔ محسن نقوی نے کہا، ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے پابند ہیں، کسی جلوس، دھرنے یا ریلی کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر داخلہ نے بتایا، بیلاروس کا اعلیٰ سطح کا وفد آج اور کل بیلاروس کے صدر پاکستان آ رہے ہیں۔ غیر ملکی مہمان 27 نومبر تک اسلام آباد میں قیام کریں گے۔ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا، وہ پارٹی سے مشاورت کے بعد حتمی رائے سے آگاہ کریں گے۔ عمران خان جو جنگ لڑ رہا ہے وہ جنگ پاکستان کی جنگ ہے۔ ہم سب نے نکلنا ہے 24 نومبر کو، اس وقت تک وہاں سے نہیں جانا جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں۔ اس حکومت کو وارننگ دے رہا ہوں، کوئی بھی نقصان اگر ہوگا تو یہ حکومت اس کی ذمہ دار ہوگی۔ پورے ملک کے عوام کی منزل آج دی چوک ہوگی۔ فائرنگ سے کوئی نقصان ہوا تو ذمہ دار وفاقی حکومت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور کہتے ہیں، حقیقی آزادی اور مطالبات کی منظوری تک ہر حد تک جائیں گے۔ تمام مطالبات پورے ہونے تک کارکن ڈی چوک پر رہیں گے۔ تحریک انصاف کا 24 نومبر کی احتجاج کی کال واپس نہ لینے کا فیصلہ۔ پی ٹی آئی سیاسی کمیٹی کا رات گئے اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ بے قصور قیادت، کارکنان اور بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی تنسیخ 8 فروری کا حقیقی مینڈیٹ بحال کیا جائے۔ آج ہر شہر سے قافلے صبح 10 بجے اسلام آباد کی طرف اپنا سفر شروع کریں گے۔ اہداف کے حصول کے لیے تحریک جاری رہے گی۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے، رکاوٹیں ہٹانے کے لیے مشینری کا بندوبست کر لیا ہے۔ جب بھی کوئی دوست ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے آتا ہے، یہ لوگ احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، پی ٹی آئی سے بات چیت کسی لیول پر نہیں ہو رہی، جو بھی احتجاج کے لیے آئے گا گرفتار ہوگا۔ نند اور بھابھی کے درمیان ڈرامہ چل رہا ہے۔
जिस मुल्क से तहाइफ लाते थे आज उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं। फितना अल खवारिज पीटीआई के एहतजाज में दहशत गर्दी कर सकता है। नेक्टा ने फितना अल खवारिज की मुमकिना दहशत गर्दी की कार्रवाइयों का अलर्ट जारी कर दिया। सूबाई हुकूमतों को सिक्योरिटी के सख्त तरीन इक़दाम की हिदायत। नेक्टा का कहना है फितना अल खवारिज के दहशत गर्द बड़े शहरों में दहशत गर्दी की कार्रवाइयां कर सकते हैं। दहशत गर्दों की अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दाखिल होने की तलाश है। महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने भी थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया। खवारिज ने पीटीआई एहतजाज में खुदकुश धमाके का मंसूबा बनाया है। मुताल्लिका इदारे दहशत गर्दी से निपटने के लिए हिफाजती इक़दाम करें। कुरम में हालात कशीदा। लोअर कुरम में गुज़श्ता रात मुसल्लह अफराद ने कई देहात और बगन बाजार जला दिया। नादरा ऑफिस और पेट्रोल पंप को आग लगाकर तोड़फोड़ की गई। वालिदैन ने इल्जाम लगाया बगन में मुसल्लह अफराद ने बच्चों को माओं की गोद से छीन कर आग लगाई। मुतासिरीन को इलाका मकीनों ने अपने घरों में पनाह दी। बालशखेल, संगीना, खारकले में हालात कशीदा। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक लोअर कुरम से खवातीन और बच्चों ने तहसील टल में नकल मकानी की। 1500 अफराद के लिए सरकारी इमारतों में रिहाइश का इंतजाम कर लिया गया। दहशतगर्दी के वाक़े के खिलाफ ANP का सूबे भर में 25 नवंबर को यौम सियाह मनाने का ऐलान। कुरम में अमन बहाली का मिशन। कुरम में अमन के लिए सीज फायर नागुज़ीर है। वज़ीर आला ने कबाइली अमायदीन से अपील कर दी। कुरम की सूरत हाल पर अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती वफ़द ने वीडियो लिंक के जरिए रिपोर्ट पेश कर दी। अमायदीन की तजावीज़ और मुतालबात से हुकूमत को आगाह कर दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं सूरत हाल की खुद निगरानी कर रहा हूँ। हुकूमत इलाका अमायदीन की तजावीज़ की रोशनी में लाहे अमल तय करेगी। वज़ीर कानून की सरबराही में सूबाई हुकूमत का वफ़द कुरम पहुँच गया। तूरी कबीले के अमायदीन से मुलाकात, तनाज़े के हल के लिए तजावीज़ हासिल की। अमन के लिए जरगा फाल करने पर गुफ्तगू। वफ़द आज सद्दा में दूसरे फरीक से मुलाकात करेगा। चनार में जो कुछ भी खबरें आई हैं वो दिल दहलाने के लिए काफी हैं कि कैसे कॉन्वॉय की सूरत में लोगों के ऊपर गोलियां चलाई गई हैं और अब ये हुआ है कि रात मार्केटों को जलाया गया है और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया गया है। ये सारी सूरत हाल है। ना सूबाई हुकूमत अमन व अमान को कायम करने के लिए कोशिशें कर रही है, ना वफाकी हुकूमत कर रही है। अमीर जमात इस्लामी का ग्रैंड जिरगा पारा चनार भेजने का मुतालबा। हाफिज नईम रहमान कहते हैं कुर्रम में जो कुछ हो रहा है उस पर सख्त तशवीश है। काफिले पर कोई कैसे हमला कर सकता है? मार्केटें जलाई गईं, लोगों को कत्ल किया गया। निफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए ग्रैंड जिरगा पारा चनार जाना चाहिए। पीटीआई मुल्की सलामती के लिए खतरा बन चुकी है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई और हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हुए। हो सकता है पीटीआई कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करे। तर्जुमान केपी हुकूमत बैरिस्टर सैफ का कहना है अपनी सल्तनत बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान बंद कर दिया गया। हुकूमत ने इस्लामाबाद सील करके एहतजाज की कामयाबी पर मोहर तस्दीक सब्त कर दी। कहाँ है वो वुज़रा जो कहते थे 50 लोग भी नहीं निकलेंगे? इन्होंने 50 लोगों के खौफ से मोटरवे और पंजाब के शाहराहों को बंद कर दिया। हुकूमत कुछ भी कर ले, इनका खात्मा यकीनी है। मैंने कहा था बानी की सियासी कब्र अपने ही खोदेंगे। बीबी के खतरनाक बयान के बाद बिल्कुल वैसा ही हुआ। सेनेटर फैसल वाबडा का ट्वीट लिखा, अदालती हुक्म के बावजूद कोई इस्लामाबाद आता है तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। असेंबली नशस्त तो जाएगी, हुकूमत भी धोबी की तरह धोने के लिए तैयार है। हाउस अरेस्ट या मत जेल वाली बात ना भूलिएगा। जिनकी रिहाई हुई उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, फिर गिला ना करना। बानी पीटीआई से जेल में थाना न्यू टाउन पुलिस की तफ्तीश। 28 सितंबर के मुकदमे में 1 घंटा पूछताछ। एहतजाज के लिए उकसाने और इश्तियाल दिलाने के इल्जामात से मुतालिक सवालात किए गए।
रावलपिंडी की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई का 5 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। बुशरा बीबी के वीडियो बयान पर पंजाब में 6 मुकदमे दर्ज। FIR के मुताबिक सऊदी अरब के खिलाफ बयान देकर अवाम के जज्बात को मजरूह किया गया। मदीना मुनव्वरा का नाम इस्तेमाल करके सियासी फ़ायदा लेने की कोशिश की। डेरा गाजी खान में दर्ज मुकदमा कराने वाला खुद सदा याफ्ता मुजरिम निकला। मुद्दई गुलाम यासीन के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के पानी के हिस्से का एक कतरा भी कहीं नहीं गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत कभी भी सिंध के पानी पे किसी को नजर रखने नहीं देगी। पीपल्स पार्टी किसी को सिंध के पानी पर नजर रखने नहीं देगी। अपने हिस्से का एक कतरा भी किसी को ले जाने नहीं देंगे। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, पीपल्स पार्टी के पास सिंध में 2/3 से ज्यादा नुमाइंदगी है। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, 6 केनालों का मंसूबा मंजूर नहीं। बेनजीर भुट्टो के दौर में भी कालाबाग डैम की मुखालफत की थी। बिलावल भुट्टो चाहते हैं नून लीग के साथ बातचीत के जरिए तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएं। दरियाए सिंध पर मजीद 6 कैनाल बनाना, उसमें किसी किस्म की मजीद रद्दोबदल को आज की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुस्तरद करती है। सिंध की सियासी और मजहबी जमातों ने इरसा एक्ट में तरमीम, 6 नई कैनाल्स बना कर दिया। JUI सिंध की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के एलामिये में कहा गया, नई कैनाल से लाखों एकड़ जमीन बंजर और 2 करोड़ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। राशिद महमूद सोमरो ने कहा, वफाकी हुकूमत तजवीज़ वापस ले, सूबों को कमजोर करने से किसी को फायदा नहीं होगा। दरियाए सिंध के लिए दीगर मकातब फिक्र की राय शामिल करके फतवा जारी किया जाएगा। कराची के इलाके अंचोली में 13 नवंबर को टारगेट किलिंग करने वाले ईरानी तंजीम के दहशतगर्द निकले। शहरी अबू हाशिम के कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान ने इंकशाफ किया कि वो ईरानी तंजीम के लिए काम कर रहे थे। 50,000 की सुपारी थी लेकिन पैसे नहीं मिले। ATC ने मुल्जिमान को 26 नवंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश धमाके से मुतालिक केस की समाअत। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान जावेद और गुल निसा को मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। गजा में 48 घंटे में 120 फलस्तीनी शहीद। सेहूनी फौज ने नसीरात कैंप पर बमबारी करके मस्जिद शहीद कर दी। गजा में हर 30 मिनट बाद एक फलस्तीनी बच्चा शहीद हो रहा है। शहदा की मजमूई तादाद 44,176 हो गई। दहशतगर्द रियासत के लबनान पर भी हमले जारी। 24 घंटे में 62 शहरी शहीद हो गए। इसराइली जारहियत से अब तक 3,645 लबनानी शहीद हो चुके हैं। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। वादी कागान के पहाड़ों और नारान में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू। बर्फबारी से लुत्फानंदोज होने सयाह सड़कों पर निकल आए। बाबूसर टॉप, बटाकुंडी और झील सैफुल मुलूक पर भी बर्फबारी और बारिश से मौसम सर्द हो गया। नौजवान कौमी खिलाड़ियों का इम्तिहान। पहले वनडे में आज टकराएंगे जिम्बाब्वे और पाकिस्तान। बाबर, शाहीन और नसीम की गैर मौजूदगी में नए खिलाड़ियों के पास सलाहियतें मनवाने का मौका। कप्तान मोहम्मद रिजवान कहते हैं, अपनी कंडीशन में कोई हरीफ आसान नहीं। इस सीरीज से पाकिस्तान को नए सुपरस्टार मिलेंगे। ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हर सीरीज अहमियत की हामिल है। ग्रीन शर्ट्स ने ब्लवायो में प्रैक्टिस से तैयारियां फाइनल कर ली। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। जनूबी अफ्रीका को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 130 रन का हदफ 11 ओवर में हासिल किया। नेमतुल्लाह की 50, जफर इकबाल 33 रन बनाकर नुमाया रहे। मैं आपसे ज्यादा तेज बॉलिंग करता हूं। पर्थ टेस्ट के दौरान बॉल खेलना मुश्किल हुआ तो मिचेल स्टार्क ने भारतीय बॉलर को मजाहिया अंदाज में धमकी दे दी। स्टार्क की बातों पर हर्षित राणा मुस्कुरा दिए।
दुबई के समंदर पर हुक्मरानी की जंग छिड़ गई। दुबई सेल जीपी के इफ्तिताही रोज ऑस्ट्रेलिया 24 पॉइंट्स के साथ बाजी ले गया। न्यूजीलैंड के 23 पॉइंट दिन का इख्तिताम दूसरे नंबर पर किया। इमारात, कनाडा और अमेरिका की 18 पॉइंट्स के साथ मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन रही। और जंगल में शोर मचाती गाड़ियों का दंगल, रैली जापान में बेल्जियम के थियारी न्यूवेल लीडर बोर्ड पर सबसे आगे, करियर के पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल की जानिब गामजन। रैली में बर्तानिया के एल्फन एवंस दूसरे और फ्रांस के सेबास्टियन तीसरे नंबर पर मौजूद हैं।